Yes, dear students, so we have seen differentiability check, how to check the differentiability of a function at a point where left hand derivative is equals to right hand derivative. Now we will enter to differentiation. So see, in NDA the question based on differentiation are very less number, because in fact differentiation is a major role in entire calculus. You have seen in limits also, continuity also, and in differentiability also. When we have to use L'Hospital rule, differentiation we require. Fine. But NDA what does? They give very few number of question of differentiation, because they know that student, they must to know this differentiation, because this is basic of entire calculus. Correct? So their questions of derivative is very simple. They focus on majorly on application of differentiation, correct, and then integration and or rest of area of calculus, correct. So in differentiation, all of you have well versed in class 11, and I told you in 12 also you all of you have done some basics of differentiation. So rather wasting our time, I will start directly differentiation, and I will go some specific problems, not entire derivative area, correct. Those are useful for ND, correct. So first we'll define the differentiation. Several times I used to say that differentiation is what? This is a rate change between two variables, correct. In one sentence you can say a rate change between two variables is known as differentiation, correct. So this you have to remember always in your entire life. Geometrically, it is what we have seen in the differentiability. See, the geometrical meaning of differentiation says, when you differentiate to any curve at a point, at that point, we got a slope of that tangent. That is differentiation does. What differentiation does? Geometrical meaning, suppose I have differentiated here, this function y equals to fx. I have differentiated at this point. So this will, differentiation what will do? It will provide to tan a slope of this tangent. Let's say some angle theta, making with x-axis in anti-clockwise sense. So dy by dx, let's say we have x1, y1 point here. So at x1, y1, it provides slope of this tangent, tan theta. Correct. So that is the geometrical meaning of differentiation. Correct. So ये दो चीजें ध्यान में होनी चाहिए आपको कि differentiation का मतलब है rate change between two variables. जैसे हर एक चीज डेरिवेटिव है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ that is also derivative, तो आपको समझ में आ रहा है because both of you are variable. मैं भी वेरिएबल हूँ और आप भी वेरिएबल हो, करेक्ट. तो जो मैं सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, यानी इट्स अ रेट चेंज हो रहा है. जो चीज सीख रहे हैं, या हो सकता है आप मेरे से ज्यादा सीख रहे होंगे, ठीक है, या हो सकता है नहीं सीख रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तो यू विल स्टार्ट एट दिस सेम लेवल, करेक्ट. सो दैट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंस हो रहा है, करेक्ट. और ये वेरिएबल के बीच ही होता है, कांस्टेंट में होगा नहीं डेरिवेटिव, बिकॉज कांस्टेंट पे कोई इंपैक्ट होना नहीं है. तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हम क्या कह देते हैं? जीरो कह देते हैं, ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट. अब कई बच्चों को कांस्टेंट में भी क्लियर नहीं होता कि सर कांस्टेंट होते क्या है. सो सी, पहले तो फंक्शन आपको पता है कि फंक्शन मैंने कोई लिखा y इक्वल्स टू fx लिख दिया, तो ये x जो फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ x होगी. यहाँ पे मैंने लिख दिया sin x प्लस 5, करेक्ट. तो ये तो प्लेन कांस्टेंट 5 दिख रहा है, सो इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है. अगर मैं इसी fx की जगह sin x प्लस z लिख दिया और y इज फंक्शन, तो ये z हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है. तो वेरिएबल कौन से होंगे? x और y, क्योंकि y में हमारा ये ऑपरेटर लगेगा d dx, जिसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है. इस y में अटैच होगा एंड देन इट बिकम्स dy by dx. दैट आई बिलीव ऑल ऑफ यू नो. सो d by dx इज एन ऑपरेटर, जैसे लिमिट ऑपरेटर है, उसी तरह डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेटर है इन कैलकुलस, ठीक है. व्हाट इट डज, इट इज अ टूल. डिफरेंशिएशन एक टूल है d dx, which compare measures the rate change between two variables, y और x के बीच में, y और इस फंक्शन के बीच में रेट चेंज को मेजर करती है.
कौन, डी बाई डी एक्स, दिस ऑपरेटर, करेक्ट। सो डिफरेंशिएशन के अंदर वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स जो हम एप्लीकेशन में आप अच्छे तरीके से और भी समझते हैं, समझ चुके हैं, करेक्ट, द रूल ऑफ डेरिवेटिव। सो with this basic definition and we must to know the rules of derivative. रूल्स ऑफ डेरिवेटिव भी बहुत कंपलसरी है समझना। तो इन नटसेल अभी मैं आप इसको क्या कंक्लूड करूं, डिफरेंशिएशन क्या है डियर, इट्स अ रेट बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग इट प्रोवाइड्स slope to the tangent of the curve at any point. Let's say this is the point. इसके tangent को slope provide करता है. Which one? dy by dx. When you differentiate the curve at that point. Clear? There are so many physical meaning also. जैसे velocity होती है, distance cover करते हैं, time consume करते हैं, तो दोनों ही variable हैं. तो see distance upon time you say speed, correct? So that is also a process of derivative. Understood? Everything is derivative there. अब तो मैं तो यही समझता हूँ, जो भी वेरिएबल हैं, अभी लॉकडाउन है तो सब लोग घर में बैठे हैं, तो लॉकडाउन वर्सेस हम आप बैठे हैं, तो ये भी डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, डिफरेंस है, बाहर नहीं निकल सकते, घूम नहीं सकते, होटल में नहीं जा सकते, करेक्ट। तो ये भी एक डेरिवेटिव प्रोसेस चल रहा है इस यूनिवर्स का, ठीक है। एंड दैट वी विल सॉर्ट आउट, नॉट अ प्रॉब्लम। हैप्पीली रहिए, खूब मन से पढ़िए, साइंस इतने अच्छे से पढ़िए कि आगे जाके आप इन सब जो ये पेंडेमिक और ये सब हो रहा है दैट यू कैन कंट्रोल। अच्छे बड़े आदमी बनिए, साइंटिस्ट बनिए। चलिए वो हम तो बनना ही है आपको, करेक्ट। तो डेरिवेटिव के आगे अब हम इसमें डेफिनेशन के आगे वी विल गो टू रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो कई बच्चों को पता है तो मैं उसको एक नटसेल क्लियर करके दूं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हमें वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आया है कि अदर देन एक्स और वाई कुछ भी होगा डेरिवेटिव में वो सारे कांस्टेंट होंगे, अदर देन एक्स एंड वाई। अगर फंक्शन हमारा लेट्स से एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड प्लस एक्स लिखी हुई है, करेक्ट। हमें चाहिए एफ डैश जेड, या मुझे चाहिए ये अगर लिखा हुआ है जेड इक्वल्स टू तो डी जेड बाई डी एक्स इफ यू वांट, या एफ डैश जेड चाहिए तो जेड इज गोइंग टू बी अ फंक्शन, एक्स बिकम्स, यहां पे अगर मैं रिस्पेक्ट टू वाई कर दूं डी जेड अपॉन डी वाई, देन ऑल्सो एफ डैश जेड बोला जाएगा। क्या है रिस्पेक्ट, वाई है, तो हमने जेड इक्वल्स टू साइन जेड प्लस एक्स लिया है, ठीक है। इसको मैं वाई कर दूं ना, इसका नाम वाई डाल देता हूं। तो देखिए डी जेड अपॉन, जैसे डी वाई लिखते हैं, सॉरी बराबर तो लिखा था, एफ जेड है डी जेड वाई डी वाई अगर मैं कर रहा हूं तो एफ जेड नहीं, एफ जेड ठीक है, एफ जेड इक्वल्स टू बराबर साइन जेड प्लस एक्स लिया मैंने, एफ डैश जेड करना है तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, अब ये देखना है विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए मुझे, तो मैं इसको अगर वाई लिख दूं, ठीक है, तो डी जेड बाई डी एक्स चाहिए अगर, तो एफ डैश जेड भी बोलिए या डी जेड बाई डी एक्स, तो साइन जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कांस्टेंट तो ये जीरो, वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस फंक्शन जेड के लिए, जेड है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये भी जीरो हो जाएगा। समझ गए कैसा, मतलब अगर हमारा फंक्शन dy बाई डी एक्स है, x का रिस्पेक्ट है, फंक्शन x में है ही नहीं, तो डेरिवेटिव इनका क्या होना है, जीरो होना है, करेक्ट। दोनों ही आपको लग रहा है कि ये वेरिएबल है बट बोथ आर कांस्टेंट बिकॉज हमने विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा है आपसे, dz बाई dx। f डैश z मींस फंक्शन इज इफ इट इज इन x तो विथ रिस्पेक्ट टू x f डैश x दिखता है, f डैश z का मतलब फंक्शन z में था, ठीक है, अभी फंक्शन z में था तो हम यहाँ पे f डैश z को यहाँ पे इस रिस्पेक्ट टू x नहीं है, अगर f डैश z केवल पूछा है तो मैं इस फंक्शन को cos z लिख सकता हूं और y इज जीरो बिकॉज f डैश z फंक्शन में है तो विथ रिस्पेक्ट टू z हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर अब z विथ रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, क्लियर हुआ। इसको और थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, इसको मैं और अच्छे तरीके से ऐसे समझा दूं, लिखिए y इक्वल्स टू, हमने ले लिया साइन t प्लस एक्स, फाइन, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन t बिकम्स कांस्टेंट बिकॉज ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव 1, सो dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन इज 1। ये बहुत बेसिक है, ये आई बिलीव सबको पता है,
कि किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप कर रहे हैं दैट इज वेरिएबल, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ y वेरिएबल है और x वेरिएबल है, तो dy by dx t इज कांस्टेंट हियर, तो sin t पूरी कांस्टेंट हो गई, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 1। ठीक है, आइए अब मैं यहां से रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में एंटर करता हूं। आई बिलीव रूल सभी को पता ही है, फिर भी एक बार मैं रिकैप कर दूं। y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्लियर हमारा विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। अगर मैं dy विद रिस्पेक्ट टू t बोलूं तो भी 0 होगा अगर c कांस्टेंट है। dy by dt t नहीं है, ये कांस्टेंट है, अगर t में फंक्शन होता तो वेरिएबल हो जाता, करेक्ट। सो c इज कांस्टेंट 1 2 3 एनीथिंग। sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू x पूछ रहा हूं, यहाँ sin थीटा है तो वो भी कांस्टेंट हो गया, y इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूं आपसे dy by dx, व्हाट इट इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ये कांस्टेंट है। अगर ये फंक्शन ऑफ x होता तो हम थीटा होता, लेट्स से मैं इसका dy by d थीटा पूछूं इसका, तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ cos थीटा बिकॉज फंक्शन इज ऑफ थीटा, so with respect to theta it is cos theta, that all of you know। sin x का डेरिवेटिव with respect to x is cos x। ठीक है, so first rule it is clear, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को अच्छे से समझ के लें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कांस्टेंट में। सेकंड रूल इज y equals to constant into u, u means I have taken function of x, u is a function of x, क्योंकि मुझे dy by dx खोज रहा हूं, फंक्शन ऑफ x। सो dy by dx इज कांस्टेंट आप असाइड रखें और u को डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, c into du by dx, करेक्ट। इट्स वेरी बेसिक रूल और इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, तो आई डोंट थिंक ये गलती होनी चाहिए। लेट्स से y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 3 इज कांस्टेंट। ठीक है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अपने को डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, x टू दी पावर n इज nx n माइनस 1, जो मैं टेबल नहीं लिखूंगा, आपको लर्न रखना है, कई बार बुक में भी अवेलेबल है, आपने पहले भी 11th में लिख रखा है, सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो मैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से 2x लिख सकता हूँ, 2x 2 माइनस 1, सो 2x दिस केम 6x, सो कांस्टेंट इनटू u का डेरिवेटिव कैसे होगा, कांस्टेंट यू हैव टू कीप असाइड, डिफरेंशिएट द u फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव 2x आया, 3 आई हैव केप्ट इट एज इट इज, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये रूल जो है डियर थोड़े बच्चों को कंफ्यूजन में डालता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं तो आई बिलीव आप तो इस लेवल पे हैं कि बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप यू आर यूजिंग सो मेनी टाइम्स लॉपिटल, सो दिस इज नॉट सो कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे इस रूल में। ठीक है डियर, नाउ नेक्स्ट रूल्स आर वेरी सिंपल, दोज आर u प्लस b, u माइनस b, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। सो मैं फटाफट लिख दूं, u प्लस v प्लस w है, सब सारे फंक्शंस ऑफ x हैं, तो du by dx क्या हो जाएगा, du by dx, u को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर v को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर w को डिफरेंशिएट कीजिए, बीच में अगर माइनस है, सपोज हियर माइनस, तो बीच में माइनस डाल दें आप, करेक्ट। लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 3x स्क्वायर प्लस cos x माइनस e टू दी पावर x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव डियर वेरी सिंपल, dy by dx, 3 कांस्टेंट कीप असाइड, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फाइन, सो du dx डन, प्लस, सो प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस sin x, फाइन, cos का डेरिवेटिव माइनस sin एंड माइनस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। ठीक है, तो जो जहां जैसे साइन था वो साइन आप मल्टीप्लाई करके, नाउ यू सिंप्लीफाई, सो दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज वेरी बेसिक आई एम डूइंग, करेक्ट, दिस इज वेरी बेसिक, ये मुझे लग रहा था नहीं करूं, लेकिन मैं एक बार डेरिवेटिव आ रहा हूं करने, तो ये सब तो मिनिमम अपने को पता होने चाहिए, ये रूल्स। ठीक है,
Next we have u into v rule, product rule, what you say. So y equals to u into v. Again u और v दो functions of x हैं, अगर dy by dx कर रहे हो, ठीक है. So dy by dx says u keep outside, v को कर लो एक बार डेरिवेटिव, प्लस डालते हैं प्लस. अब जिसका डेरिवेटिव हुआ उनको छोड़िए, v एंड u du dx. इसको कई जगह आपके स्कूल कॉलेज में सिखाई गई है, u v डैश प्लस v u डैश, डैश इज dv by dx, u डैश इज du by dx. तो ऐसे भी याद रखो, ऐसे भी याद रखो, वेरी सिंपल. अगर u इंटू v इंटू w है, तीन फंक्शन इंटू में है, देन ऑल्सो वी हैव रूल, दो को आप छोड़िए, एक को डिफरेंशिएट कीजिए. y equals to u v w if all three are functions of x. So dy by dx, दो को छोड़िए, एक को डिफरेंशिएट कीजिए. I kept it ub outside, aside, differentiate w plus uw कौन रह गया, v have to differentiate. Now w and v differentiated. Now the term is for u, so du dx. तो तीन फंक्शन, मोर देन 3 अगर हुआ तो हम लॉग से हम करेंगे आगे डाउन द लाइन. सो ये u इंटू वी इंटू w, ये प्रोडक्ट रूल, ये आपके आने होने चाहिए, ठीक है. अब जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ, y इक्वल्स टू 330x इंटू कॉस x, ठीक है. अब आप इसको u v w ना करें, दिस इज कांस्टेंट. सो कांस्टेंट तो आपको बाहर ले ही लेना है. सो व्हेन यू गो फॉर डेरिवेटिव, so you have to keep 30 outside, put a box. Now you use u into v here, fine. So x छोड़ा cos का minus sin x plus cos x छोड़िए x का 1, and this is the answer. Simplify कर लेंगे, minus x sin x plus cos x into 30. ठीक है. So this product rule, I believe all of you have already, you know, I am 100% sure, but एक बार go through कर लिए, कंफर्म पक्का हो गया कि कब कांस्टेंट को बाहर लेना है. कांस्टेंट के साथ हमेशा केयरफुल रहना है, u into v हो या u into v into w हो. Next we have in the rule u upon v rule. This is what we call quotient rule. क्वोशिएंट रूल याद रखना है आपको, u और v दो फंक्शंस ऑफ x हैं, तो dy by dx, डिनोमिनेटर स्क्वायर, दिस इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एज डेरिवेटिव ऑफ u, फाइन, माइनस नाउ न्यूमरेटर एज इट इज एज डेरिवेटिव ऑफ v. ठीक है, इस तरीके से भी याद रखिए, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एज, करेक्ट कीजिए इसको. या फिर ऐसे v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, ठीक है. माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड v स्क्वायर है तो v यहाँ होगा, ठीक है. तो अब कैसे भी, आई बिलीव सबको लर्न है ये रूल, और रहना भी चाहिए, बिकॉज u अपॉन v रूल जहाँ भी होगी आपको यूज करना ही है, पूरी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हर जगह. सो दिस इज व्हाट क्वोशिएंट रूल. सो डियर, ये रूल को मैंने कुछ एलॉबरेट कर दिया है, तो सबको पता भी है ये रूल. आई डोंट थिंक इज वेरी डिफिकल्ट. रूल बड़े अच्छे से आने चाहिए, और टेबल इन द सेंस जो हमने चार्ट बनाया रखा है, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सबके डेरिवेटिव, वो याद रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि जिसमें जो रेयर यूज होते हैं, जैसे कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, इनके डेरिवेटिव हर जगह यूज नहीं होते, बट जब यूज होते हैं तो बच्चों को याद नहीं रहता है. तो उनके डेरिवेटिव आप जरूर याद रखिए. किनके? कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, करेक्ट, a to the power x, e to the power x log x are simple. cot x की जरूर याद रखें आप, डेरिवेटिव ऑफ cot x, what it is, माइनस cosec square x, ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ cosec x, दिस इज माइनस cosec x cot x. तो c से जो भी स्टार्ट होता है सब माइनस होता है, जैसे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, cot x डेरिवेटिव इज माइनस cosec square x, cosec x डेरिवेटिव इज माइनस cosec x cot x, ठीक है. रेस्ट I believe all of you remember x to the power n, sin, cos, tan, sec,
cosec x, cot x, log x, 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log x। log x में भी थोड़ा केयरफुल रहना आपको, बेस हमारा e है या नहीं कुछ लिखा है तो ही dy/dx 1/x लिखेंगे आप, ठीक है। अगर बेस लिखा है e तो ही 1/x, अगर नहीं भी लिखा है तो ही 1/x। बट अगर हमारा y इक्वल्स टू log x विथ बेस 2 लिखा है, e छोड़ के, यहां तो कुछ नहीं था तो भी 1/x लिखा, e है जिसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं तो भी 1/x। बट इफ इट इज 2, 3 कुछ नंबर लिखा है देन 1/x डायरेक्ट नहीं लिखना है डियर, यहाँ पे आपने बेस चेंज यूज करना है, log x by log 2, फाइन, एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट dy/dx। अब यहाँ u अपॉन v नहीं यूज करना है, दिस इज कांस्टेंट, 1/log 2 इज कांस्टेंट 1/log 2, एंड बच गया क्या, log x का डेरिवेटिव 1/x, सो आप इसको 1/x log 2 लिखते हैं, ठीक है, log x विथ बेस 2 का डेरिवेटिव। ये भी थोड़ा ध्यान से समझो, एनडीए इस पे भी एक्सपेरिमेंट करती है डिफरेंशिएशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिफरेंशिएशन के सम डिफिकल्ट नहीं होंगे, बहुत बेसिक, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अच्छे से पता होना चाहिए, इनवर्स का थोड़ा पता रखें और अपना लॉगरिथम डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन के सम आप इजीली एनडीए में निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो डियर दीज आर रूल्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के रूल और डिफरेंशिएशन का जो मैं चार्ट बोला हूँ जो आपको लर्न रखना है, sin x, cos x, tan x, e टू द पावर x, इनवर्स वाले भी sin इनवर्स x का डेरिवेटिव, cos इनवर्स x के डेरिवेटिव, ठीक है, ऑल दोज यू हैव टू रिमेंबर। आप उसको याद रखेंगे देन ओनली डेरिवेटिव पे सम्स, एंड आई एम 100% श्योर, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि सभी बच्चों को, जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, इवनिंग के बच्चे, मॉर्निंग के बच्चे, हर एक बच्चे को डिफरेंशिएशन सारे फंक्शन का याद रहना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने क्या लिखना है डियर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स में माइनस लग जाता है, ठीक है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, दिस इज वेरी यूजफुल डेरिवेटिव, ये कई बार यूज होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप क्या लिख देंगे, 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव आपको लर्न रहने चाहिए, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स पॉजिटिव होता है, कॉस इनवर्स में -1 दिस, ठीक है। tan इनवर्स एक्स पॉजिटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स में माइनस आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स पॉजिटिव 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट कॉसेक इनवर्स एक्स होगी तो ये -1 यहाँ आएगा, ठीक है। सो ये रिलेशन भी याद रखिए तो दिमाग में रहेगा, फाइन। सो दीज आर सम रिजल्ट्स जो आपको कंपल्सरी याद रखने हैं, a टू द पावर x, log x, e टू द पावर x, सबके डेरिवेटिव आपको याद रहने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो डेरिवेटिव के ये जो बेसिक आपने टेबल रूल्स ऑल ऑफ यू हैव डन इन क्लास 11, ठीक है। वंस यू एंटर्ड इन क्लास 12 देन यू केम टू नो द फंक्शन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बिकॉज आप फंक्शन से भी पढ़ते आ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस 11 में भी पढ़ा, अभी एनडीए में भी आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन का जो पहला एनडीए में प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट होता है, पहली क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन में दी जाती है, दैट इज फ्रॉम फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आई बिलीव सबको पता भी है, फिर भी देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स नहीं है, हमने जो टेबल में बनाया है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होती है, कॉस एक्स, हमने वहां साइन एक्स स्क्वायर का नहीं डेरिवेटिव बनाया, लिखा है वेयर वी हैव इन टेबल, जो चार्ट बनाया आपने, जो आप सबके बुक में भी रहता है, वहां पे साइन एक्स की डेरिवेटिव लिखी हुई है, देयर इट इज नॉट रिटन साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, करेक्ट। तो जैसे ही टेबल को फंक्शन को छोड़ा, कोई भी साइन हो या कॉस हो या एक्स पे हो, वो सारे फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाते हैं, करेक्ट। टू गेट दिस साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन and x square is algebraic function, so it is a composition of trigonometric
एन अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर, साइन 3x, साइन माइनस एक्स बाई 2, करेक्ट, साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. So there are thousands of composition functions are available. N number of composite functions are available in the function, ठीक है। उन सभी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है, एंड इट शुड बी डिफाइंड. वी हैव ऑलरेडी नो फंक्शन, फंक्शन इज रूल, इट इज डिफाइंड, इट शुड बी डिफाइंड. ऐसा नहीं कि हमने आपसे बोल दिया y इक्वल्स टू साइन CAT कैट, साइन कैट का डेरिवेटिव निकालो. नो, इट इज नॉट डिफाइंड. तो डिफरेंशिएशन हमें डिफाइंड फंक्शन क्या ही निकाली जाती है, ठीक है। तो ये सारे कंपोजिशन फंक्शन हो गए, करेक्ट. ये हुआ साइन में हुआ, लेट्स से हमारा log ऑफ sin x आ गया, ठीक है. log x is a function but log sin x becomes composition function. So these are composite functions, ठीक है. So composite functions के ही डेरिवेटिव आपको सबसे बेसिक सीखने होते हैं, और एनडीए का जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपोजिशन फंक्शन पे ही बेस्ड होता है, ठीक है. लेट्स से हाउ विल डिफरेंशिएट द कंपोजिट फंक्शन. हमने लिखा था साइन एक्स स्क्वायर. तो जब आप इसको dy बाई डी एक्स करेंगे, ट्रीट दिस एज ए फर्स्ट साइन एक्स. इस पूरे को x ट्रीट कीजिए, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर इज एक्स. अब इस x का डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर यू नो 2x, फाइन. सो द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज, पहले हम लास्ट वाले को पहले लिख देते हैं, 2x cos x स्क्वायर, राइट. दिस इज द डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन. आई डोंट थिंक कि बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत बेसिक लेवल है. हाँ, डेरिवेटिव इतना तो हमें आना ही होना चाहिए. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल 9 टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव चाहिए. इस पूरे को हमने क्या ट्रीट करना है, x टू दी पावर n, एंड इसका डेरिवेटिव होता है nx n माइनस 1, राइट. सो इसके डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, पावर रूल 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इस पूरे को हमने x ट्रीट किया, तो x टू दी पावर 5x 5 माइनस 1, ये तो इस x के लिए हुआ, इस पूरे को जो x लिया था हमने. अब ये जो x पड़ा, इनका डेरिवेटिव इंटू होगा हमेशा, इंटू ऑफ दिस डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 2x इज 2, दैट्स इट. 9 इज 0. सो द फाइनल आंसर वी कैन राइट 10x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 टू द पावर 4, राइट. सो दिस वे फंक्शन ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव. कोई डाउट? बहुत सिंपल है, फंक्शन ऑफ फंक्शन आप कर चुके हैं कई बार, ठीक है डियर. लेट्स से वी टेक वन मोर एग्जांपल. y इक्वल्स टू रूट साइन log x, इसको डिफरेंशिएट करना है. आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक करूंगा. नेक्स्ट मंडे से डेरिवेटिव के और भी क्वेश्चंस और भी टाइप्स करने के बाद विल गिव यू लॉट ऑफ असाइनमेंट्स टू प्रैक्टिस, ठीक है. आज मैं केवल डिफरेंशिएबिलिटी और थोड़े डेरिवेटिव के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा आपको, ठीक है. क्योंकि टेस्ट का भी आप पीछे प्रिपेयर करिए. dy बाई डी एक्स, तो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखना है, 1 बाई रूट 2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स याद रखना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव. पहले मैं रूट एक्स ले लिया, 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है, ये आ गया 1 बाई 2 रूट एक्स. फिर इस x का करना है, जो साइन x है, तो ये क्या होगा, cos x. फिर इस x में जाना, वो क्या है, log x, which is 1 by x. So final answer we can write 2x sin of log x into cos of log x. ठीक है, clear there? So with this question I'm closing this session. नेक्स्ट क्लास में डेरिवेटिव के और भी टाइप्स फंक्शंस को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, आप भी सीखेंगे. मीनवाइल आज थोड़े से होमवर्क दूंगा मैं,
आप पुराने टेस्ट का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और रिवीजन कीजिए, ठीक है।